बहन जी ले चलेंगे, मैं चलूंगा। मेरे जन्मदिन है थोड़े दिन बाद। ऐसा ना करो, या तो ये काम आपने बताना नहीं था मुझे, और अभी ऐसा ना करो। मेहरबानी चलो भाई चलो, ले भाई थोड़ी देर बनो। यार पत्नी कोई बीमारी हो गई ना तो कहीं अंदा पे गया भी हुई कोई गुर्दे से पत्नी है क्योंकि यार की तू कभी काटी बैठी तू तो पत्नी उनकी खत्म हो गई। वाह हिंदुस्तान वाले वाह यार कमाल। साडा मुंडा बाहर सी नहीं लेके जाना मुंडा अंदर ही रहेगा साडा मुंडा। लड़का नहीं जाएगा, ना 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 लड़का यही करेगा। बंदा मर गया डॉक्टर शर्म होनी चाहिए। जवान मुंड मारता किदा किले जवान पुत मारता कम से कम एक सरकार ने नहीं डॉक्टर अंदरों आया कि नहीं बाहर कोई नहीं आया। ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੜਨਾ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਲੜਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਡੈਥ ਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਰਿਆ ਨਾ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਮਰਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। हाँ जी जनाब मेरी गल सुनो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਤ ਨਾ ਕਹੋ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਆ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਟ ਸੀਗਾ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚ ਬੰਦਾ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇਰਾ ਲੜਕਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਜਾਵੇ ਖੜਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਤੇਰਾ ਲੜਕਾ ਲੜਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਅਸੀਂ 100 किलोमीटर चल के ऐसे कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं मैं एक बार भी डेट नहीं आया लिट्टू ने बहुत जवान लगा डेट नहीं आया साडी गुंडा व्यक्ति दा साडा बंदा ना ना नहीं बंदा थल्ले ले लो भाई आपसे भी गुजारिश है मैं भाई लग गया मैंने आपको कहा था दिया मैं फोन लाई हूं मैं भाई सर पोस्टमार्टम मेरी गल सुनो सुनो एक मिनट मेरी गल एक मिनट ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਮਝੀ ਨਾ ਕੋਈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਬਾਂਜਰਾਵਾਂ ਖੁਰਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਪੱਥਰੀ ਸੀ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਦੇਂਗੇ। 4 ਘੰਟੇ ਲਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4.5 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਮੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪਿੰਡੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਡੈਡ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਮਾਰੇ आदमी बाहर बैठे तू बता नहीं सकता जी कारण बस लापरवाही इनकी डॉक्टर की लापरवाही सारी। डॉक्टर साहब सानू मिले नहीं उस तो बाद हाँ बिल्कुल नहीं मिले बाहर भी नहीं आए बिल्कुल ही नहीं बाहर आए अजे तक कुछ नहीं साडे कोल आया ही नहीं बिल्कुल ही नहीं आया भी मेरे तो कुछ होया या नहीं होया जी।
ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਵਣ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? 25-26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਬਾਹਰ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ही नहीं दे रहा। डॉक्टर बाहर तो आएगा जी, डॉक्टर भी नहीं बाहर आ रहा। डॉक्टर बाहर आए, कोई कार्रवाई तो जब ही होगी ना जब डॉक्टर भी कुछ बताए। हमें भी तो नहीं पता डॉक्टर के बारे में क्या दिक्कत हुई है क्या नहीं हुई। आने के बाद मिलने की कोशिश की है, डॉक्टर मिलने ही नहीं दे रहे, अंदर ही नहीं जाने दे रहे। अंदर जाए तो डॉक्टर मिले तो डॉक्टर साहब ने पुलिस बुला रखी है। पेशेंट को आपने देखा जो नहीं देखने दिया जी अभी तक तो। उसके पास भी नहीं जाने नहीं, फिर डॉक्टर ने ही पुलिस वालों को बुला लिया यहाँ, ठीक है। पुलिस वालों को बुलाया है, पुलिस वाले यहाँ हमारा आदमी चला गया, हमारी इतनी वैल्यू नहीं है, आगे पुलिस वाले बुला रखे हैं। डॉक्टर ने पुलिस वालों को बुलाया, हमने भी नहीं बुलाया। डॉक्टर को पता था भी इतना टाइम हो गया, बंदा गया है, कोई गलत ये बच्चा सुबह का यहीं बैठा है, इसको बता देते। पथरी का अगर कुछ भी ऑपरेशन हुआ है कुछ तो गलत हुआ ही है, वो गलती डॉक्टर साहब मान ही नहीं रहे। हाँ जी हाँ जी, अभी शादी हुई है, अभी शादी हुई है, सिर्फ 6 महीने हुए हैं, लड़की अंदर बैठी है। आप बेटे बाहर ही बैठे ना, आप ये रही लड़की है, अभी इसकी जवानी कहाँ जाएगी? डॉक्टर ने लापरवाही कर दी। 5 मिनट सानू टाइम दे दो, साडे बंदे नाल धक्का ना करो। इन्हां ने दवा दा भी धक्के नाल दवा दा मैं एंबुलेंस के आगे हाथ नहीं बच्चा आगे आन के डिगा, जोड़ा, 1 मिनट नहीं रुके। 1 मिनट भी नहीं इन्हां ने साडी वेट कीती। जो भी काम कीता इन्हां ने धक्के नाल कीता। जनाब खड़े ने, माड़ा जिहा सानू तो हत्थ फेर देण, कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਮਿਲਾਣੇ 5 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਣੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। शरेआम धक्का कर रहे हैं, शरेआम धक्का कर रहे हैं जी। ਸਾਡਾ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਮਾਰਤਾ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਦੋਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ। मैं एंबुलेंस ਦੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆਦੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ 3-4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮਾਰੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਵਿਖਾਇਆ। मतलब बिना पूछे थोड़ी बिना धक्का, खुला शरेआम धक्का। इन्हां दी डॉक्टर नाल सारी गलबात हुई है जी, ये डॉक्टर दी पूरी वो कर रहे ने जी, साडे वाले कुछ नहीं कर रहे 1%। ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੀਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੋਲ ਨਾ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾ। 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉਹਦੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਪੂਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਾਣੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਕभी ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਗਰੋਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ, ਫਿਰ ਅਗਰੋਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? सिविल हॉस्पिटल क्यों लेके जाया गया? ये पेशेंट मेरे पास सुबह आए थे, पेन के साथ आए थे, लेफ्ट साइड में पेन था इनको, और इनको मालूम था इनको स्टोन है। 2 महीने पहले इनको सर्जरी के लिए एडवाइस कर दिया गया था। मेरे पास आज सुबह आए थे, हमने इनके जो टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, वो सारे किए हैं। उसमें हमें पता चला भी कि इनके 2 स्टोन है, एक गुर्दे में स्टोन है और गुर्दे की पाइप में स्टोन है। उसके लिए हमने इनको ऑपरेशन के लिए सलाह दी थी। 3:35 के आसपास ये भर्ती हुए हैं सारा चेकअप होने के बाद, और 4:30 बजे के आसपास इनको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया है। 4:30 बजे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है और ऑपरेशन चल रहा था। चलते चलते ऑपरेशन के बीच, ऑपरेशन के दौरान इनका दिल की धड़कन रुक गई। क्यों रुकी, किस वजह से रुकी, इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरे को नहीं मालूम। अभी तक हम समझ नहीं पा रहे हैं भी ऐसा क्या हुआ, जब सारे चेकअप में टेस्ट नॉर्मल थे इस पेशेंट के। उसके बाद हमने जो हमारे फिजिशियन हैं और जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इनको तुरंत कॉल किया, वो तुरंत आ गए, और जो प्रक्रिया होती है CPR की वो स्टार्ट की गई। स्टार्ट चल रही थी और फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट ने उसमें ज्वाइन कर लिया, जो चलती रही 7 बजे तक चलती रही।
7 बजे तक हम पेशेंट को रिवाइव नहीं कर पाए। 7 बजे हमने पेशेंट को फिर सबसे सहमति से जब पता चला भी कि नहीं रिवाइव हो पा रहा है तो उसको रोक दिया। कितने केसों में ऐसा होता है सर? मेरे कैरियर में ये फर्स्ट केस हुआ है अभी तक जिसमें ऑपरेशन के दौरान दिल की धड़कन रुक गई है। सर सडनली एकदम से जो हार्ट बीट है वो रुक गई है और वही परिवार का ये आरोप है कि उनको जल्दी से नहीं बताया गया जबकि वो यहीं पर परिवार मौजूद था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही बताया था। देखिए जो परिवार के सदस्य थे उसमें से एक को बुला के हमने बता दिया था। उसके बाद थोड़ी देर में दूसरे सदस्य जो पढ़े लिखे थे उनको बुलाकर आशीष ने बता दिया था। उसको अंदर भी बुला के दिखा दिया गया था और उनको नॉलेज भी थी भी कि सीपीआर में कितना होता है। उन्होंने काफी क्वेश्चंस भी किए थे हमसे। देखिए सीपीआर में कितने शॉक्स दे दिए, कितने साइकिल हो गए, बट वो भी यही कह रहे थे भी कि सीपीआर कंटिन्यू करो। उस टाइम 6:20 का टाइम था। 7 बजे तक हमारा सीपीआर फिर भी चलता रहा। हम उसको रिवाइव नहीं कर पाए। परिवार लापरवाही के भी आरोप लगा रहा है। किस चीज के लापरवाही का आरोप लगा रहा है? हमने अपनी तरफ से जो टेस्ट होते हैं ऑपरेशन से पहले वो सारे के सारे मापदंड पूरे किए हैं। जो फिजिशियन चेकअप होता है वो भी पहले पूरा करवाया गया है। अभी तक मेरे को नहीं लगता हमने कोई लापरवाही की है। अगर आगे चल के कोई लापरवाही प्रूफ होती है फिर हम देखते हैं। परिवार के सदस्य भी मिले हैं? अभी मिले थे। क्या बातचीत हुई है सर? उनको सारा अभी आपके सामने ही मिले हैं जो भी परिवार के सदस्य मिले हैं। उन्होंने भी यही क्वेश्चंस किए थे भी ऐसा हो सकता है या क्यों हुआ। तो हमने भी जो जवाब दिया है वही उनको जवाब दिया है। जब ऑपरेशन के लिए आए थे ये 2 या 3 लोग थे, ठीक है। जब ये सारा प्रकरण जब शुरू हुआ सब कुछ हुआ, ये सिर्फ 4 लोग थे, ठीक है। ये 4 लोग थे। मैं जा के इनको अंदर जो है ना बाहर ओटी के बाहर इनके रिलेटिव्स को मैंने 3 रिलेटिव्स हैं, 3 रिलेटिव। एक लेडी चली गई थी वो अपनी करा के, 3 थे, 2 मेल थे 1 फीमेल था। तीनों को मैंने वहां उनको दिखाया है ये प्रक्रिया चल रही है, ये सब कुछ है। एक एक चीज उनको बताते रहे क्योंकि डॉक्टर साहब तो अंदर उस पे बिजी रहेंगे ना। अब उस टाइम पे काउंसलिंग मैं कर रहा था और वहां पर सारी मैं बता रहा था। लेडी ने वहां बाहर अरदास भी करी है, सब कुछ किया है, ये सब उसके सामने हुआ। उसने हर तरह की वो मांगी है कि भाई आजा, मैं 40 दिन ये करूंगी वो करूंगी, सब कुछ वहां पर उस लेडी को सब कुछ मालूम था और उसको बताया था और वो नर्स भी थी। उसके बाद इनके जो मेन रिलेटिव्स हैं वो धीरे धीरे बाद में आते गए। वो जब आते गए वो एक मॉब का रूप ले लेते हैं। बुला डॉक्टर नु किधर है, ऐसी चीजों में हम डॉक्टर को कैसे बुला सकते हैं। तो मैंने उस टाइम कहा, मैंने कहा आप 4 लोग आ जाओ सर, मैं बैठता हूँ डॉक्टर साहब, वो 4 लोग हम डॉक्टर साहब को मिला देते हैं। हमारे आने वाले हैं, आ रहे हैं, अभी आने वाले हैं, आ रहे हैं। वो आने वाले सर 9:45 बजे आए हैं। बॉडी भी जा चुकी थी, इसमें से जो मैक्सिमम थे वो 9:45 बजे आए हैं। और ये सारा का सारा मामला इतनी देर से चल रहा है। मैं बाहर खड़ा हूँ, मैं तब से हिला नहीं हूँ। मैं बोला मैं मिलाता हूँ। ये बोल रहे हैं, मैंने जिसको बोला है, मैंने बोला क्या मैंने आपको बोला नहीं? अभी भी उसने बोला हाँ सर आपने। मैंने ये बोला, मैं कहा आप 4 आदमी आ जाओ, मैं डॉक्टर साहब से मिला देता हूँ। आ रहे हैं वो मिलेंगे, आ रहे हैं वो मिलेंगे। तो हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो मिलने वाले क्या उनको आने दो पीछे से, और आ रहे हैं उनको आने दो, उनको आने दो। और लेकिन जो साथ में आए थे उनको क्लियर कट हर चीज दिखाई गई थी। और ओटी के बाहर ऐसे वो एक विंडो है, उसमें से उनको दिखाया भी गया था, सब कुछ था। और वो लेडी स्टाफ नर्स है, उसने सारी चीज देखी। उसने एक एक जो टेक्निकल चीजें पूछी उनका डॉक्टर कपिल ने जवाब दिया है, डॉक्टर मनदीप ने जवाब दिया है। और डॉक्टर मनदीप उस टाइम आके बाहर उसको सब कुछ बता के गए। तो अभी परिवार को सारी चीजें समझा दी हैं और जो डेड बॉडी है वो परिवार को दे दी गई? हाँ जी, डेड बॉडी पुलिस ने ले ली है और इसकी आगे की प्रक्रिया वो पोस्टमार्टम करेंगे कैसे है वो पुलिस। ठीक है।